سب کے لیے ویسے سنت ہے اور میرے لیے بھی ہے، خاص طور پہ انٹرنشپ جو پولیس کے اندر سٹارٹ ہو چکی ہے، اس کا مجھے بھی نہیں پتا تھا. ماشاءاللہ کلیپنگ کریں سر کے لیے بڑے. اور یہ جو اسٹوڈنٹس کا انٹریکٹیو سیشن ہے انشاءاللہ یہ فروٹفل رزلٹ دے گا ہماری اسٹوڈنٹس کو، اور ان کی سب گرومنگ ہوگی اس حوالے سے اور فیوچر اورینٹڈ ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ یہ ساری چیزیں جب آپ دیکھیں گے، سر سے سوال بھی آپ کریں گے، سارے سوال کے لیے تیار ہیں؟ آواز نہیں آئی؟ ماشاءاللہ گڈ. تو فرسٹ آف آل لیڈی فرسٹ کوشچن کریں گے فرام گرل سیکشن. جی عرفہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا نام عرفہ بطوط ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں عام طور پر یہ ہے کہ پولیس رشوت دے کے کام کرتی ہے، تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ مشکل. عرفہ کے لیے کلیپنگ کریں. ماشاءاللہ سر پلیز. بڑا فیکچوئل بھی ہے، لوگوں میں یہی کنسیپٹ ہے جو آپ نے بتایا کہ پولیس رشوت لے کے کام کرتی ہے. اب اس سوال کا جو بیک گراؤنڈ ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں. کسی حد تک درست ہے، 100% درست نہیں ہے. اس وقت اچھے برے لوگ تو ہر جگہ پہ ہیں، ہر سوسائٹی. پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ پولیس کہاں سے ہے، ہم لوگ کہاں سے ہیں. آپ سے ہی ہے نا. کل میں آپ ہی کی طرح یہاں پہ بیٹھا تھا اور شاید میں بھی کسی سے یہی سوال کر رہا تھا کہ پولیس رشوت لے کے کام کرتی ہے. لیکن اگر آپ باقی اداروں کو بھی دیکھیں تو وہ بھی پبلک سے ہیں، سارے ادارے پبلک سے ہیں، اور ہمارا کوئی بھی ادارہ ایسا آئیڈیل نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ اس میں کرپشن نہیں ہے، رشوت نہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ کرپشن والا یہ رشوت والا جو مائنڈ سیٹ ہے یہ ہماری سوسائٹی میں پبلک میں بھی یہی چیز ہے. میں آپ کو آگے اس کے مزید ایلیبریٹ کروں گا، سمجھ آ جائے گی آپ کو. دوسری چیز یہ ہے کہ اب سوسائٹی نے، معاشرے نے میری تربیت کی ہے، میری سے مراد پولیس والے کی 20 سال یا 25 سال، اور وہ ڈپارٹمنٹ میں جب آیا ہے تو ڈپارٹمنٹ نے کی ہے 6 ماہ یا 1 سال اس کی تربیت. تو جو 20-25 سال کی تربیت ہے نا اس کی، وہ کبھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گی، ہمیشہ اس کے ساتھ وہ چلے گی ساری زندگی. تو اگر گھر میں پیرنٹس نے، ٹیچرز نے، اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں اس کی تربیت اچھی کی ہوگی تو وہ ایک اچھا آفیسر بنے گا. ڈپارٹمنٹ 6 ماہ کی ٹریننگ میں، سال میں اس کو کچھ خاص نہیں بگاڑ سکتا یا بنا سکتا. ایک چیز تو یہ ہے کہ ہمارے سوسائٹی میں جو ٹریننگ ہو رہی ہے ہماری کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، اتنی بہتر نہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی کا ایک یہ پہلو بھی ہے کہ جب کسی کو کسی بھی ادارے میں کام پڑتا ہے تو وہ خود سے چاہ رہا ہوتا ہے کہ میرا کام سب سے پہلے ہو اور میں بے شک اس کے لیے پیسے. تو مسئلہ پھر اس کو چلانے والوں پہ آتا ہے، ان کو لاگو کرنے والوں پہ آتا ہے. اور وہ لاگو کرنے والے جو ہیں وہ کہاں سے ہیں؟ وہ اسی سوسائٹی سے ہیں. تو جب فرق کہاں آ گیا کہ ان کی سوسائٹی اپنے نوجوان کو کیسا ٹرین کر رہی ہے اور ہماری سوسائٹی اپنے نوجوان کو کیسا ٹرین کر رہی ہے. یہی جب نوجوان آگے جا کے جج بنے گا، پولیس آفیسر بنے گا، کوئی ڈاکٹر بنے گا، کچھ بھی بنے گا، ٹیچر بنے گا، تو پھر وہ اسی طرح ڈیلیور کرے گا جیسے اسے بتایا. ابھی ہم دوسرا کوشچن لیتے ہیں گرل سیکشن سے. گرل سیکشن سے سیرت فاطمہ. سر میرا نام سیرت فاطمہ ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں جرائم کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، جبکہ ہمارے معاشرے میں پولیس بھی موجود ہے اور جرائم بھی بڑھتے جا رہے ہیں، تو ہم ان کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ جرائم کو کنٹرول کرنا ہے تو یہ بات صحیح ہے کہ پولیس کے ہوتے ہوئے، اس ادارے کے ہوتے ہوئے جرائم بڑھ رہے ہیں. تو اس کے 2 پہلو ہیں. اس کو دیکھیں، ایک پہلو یہ ہے کہ جرائم کے ریزنز کیا ہیں، ان کو بھی ایڈریس کرنا ضروری ہے، ان پہ بھی کام کرنا ضروری ہے. اور دوسرا جرائم کو کنٹرول کرنے کے جو ہمارا میکانزم ہے، جو طریقہ کار ہے، اس کو بھی بہتر کرنا ضروری ہے، اس کی پرفارمنس بڑھانی چاہیے. تو جرائم ہو کیوں رہا ہے، اس کے ریزنز بڑی کلیئر ہیں کہ پاورٹی ہے، غربت ہے، جہالت ہے، تعلیم نہیں ہے، علم نہیں ہے، لوگوں کو شعور نہیں ہے، حلال حرام خبر نہیں پتہ، حق نہ حق کا نہیں پتہ.
یا پتہ ہے تو پھر ایک فیشن کے طور پہ لوگ جرائم کرتے ہیں. ہماری مینٹیلٹی ہے ہمارے معاشرے کی, ہمارے لوگوں کی سوچ ہے کہ لوگ جو ہیں نوجوان جو ہیں وہ اسلحے سے محبت کرتے ہیں, پسند کرتے ہیں اس کو, یا اوور اسپیڈنگ پسند کرتے ہیں. اگر گاڑی یا موٹر سائیکل مل جائے تو اس کی ریسیں لگانی, اس کو اوور اسپیڈ چلنا. تو یہ ہماری مینٹیلٹی ہے سوسائٹی کی کہ اگر ایک فیسلٹی بھی آپ کو ملی ہے تو اس کا بھی مس یوز ہم نہیں کرنا ہے. کوئی سہولت ہمیں موبائل فون مل گیا ہے تو اس کا مس یوز کر رہے ہیں, موٹر سائیکل مل گیا ہے تو اس کا مس یوز کر رہے ہیں. تو جس کو جو فیسلٹی مل رہی ہے وہ اس کو بھی غلط طریقے سے استعمال کر رہا ہے. بیسیکلی ایک ٹرینڈ سیٹ ہو رہا ہے, ایک ذہن بن رہا ہے بچے کا. جب وہ بڑا ہوگا اس کے ہاتھ میں جو بھی چیز, جو بھی اختیار, جو بھی چیز اس کے اختیار میں آئے گی وہ اس کو مس یوز کرے گا. یہ تو یہ ہے جس میں ہمیں بچوں کی تعلیم, تربیت, شعور, آگاہی یہ چیزیں انہیں دینی ہے, انہیں بتانا ہے, قانون سے آگاہی دینی ہے کہ یہ جرم کرتے ہیں, یہ غلطی کرتے ہیں تو اس کی کتنی بڑی بھاری قیمت ہے, سزا ہے اس پہ. اور وہ سزا صرف آپ انڈیویجول کو نہیں ملے گی, وہ آپ کی پوری فیملی کو سزا ہے, اور اس سے آپ کے پیرنٹس, آپ کے بھائی, آپ کے بچے سب سفر کرتے ہیں. یہ ریزن ہے جرائم کے بڑھنے کی کہ ہم اپنے بچوں کو, اپنے نوجوانوں کو آگاہی نہیں دے پا رہے اور ان کی مینٹل گرومنگ صحیح سے نہیں ہو پا رہی, انہیں بتانا چاہیے. اور دوسرا تعلیم کی کمی, غربت ایک بڑی میجر وجہ ہے. لوگ اپنے اخراجات کو میٹ نہیں کر پاتے, انہیں پورا نہیں کر پاتے, تو پھر اس کے لیے انہیں پورا میل پریکٹسز میں جانا پڑتا ہے, غلط حرکتیں, غلط کام کرنے پڑتے ہیں. کوئی منشیات فروشی میں چلا جاتا ہے, کوئی اسلحے کا کاروبار شروع کر لیتا ہے, کوئی جو بھی کر سکتا ہے وہ غلط کام وہ کر لیتا ہے. یہ غربت بھی اس کا ریزن ہے. اور دنیا میں آپ سوسائٹی کا تحمل نہیں ہے, ہم اپنی کیو میں لگ کے اپنی باری کا انتظار نہیں کریں گے. ہم اگر فرض کریں ہم نادرا کے آفس میں جاتے ہیں کسی کام کے سلسلے میں, تو ہم پہلے کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی سفارش ڈھونڈ لیں, کوئی رشوت دے لیں, ہم جائیں تو ہمیں ویٹ نہ کرنا پڑے, ہم جائیں تو ہمارا اس وقت کام ہو جائے. حالانکہ ہمارا جائز کام ہوتا ہے, لیکن کیا ہے کہ جو ہمیں تھوڑا سا انتظار, تھوڑا سا صبر بھی ہمیں گوارا نہیں ہے. تو اس کے لیے ہم پہلے ہی تیار ہو جاتے ہیں کہ ہم جائیں گے, ہمیں پیسے دینے پڑیں گے. اگر 500 سے کام ہونا ہے وہاں پہ فیس 500 ہے, ہم 1000 روپے دے دیں گے, 2000 دے دیں گے, ہمارا کام دے دیں گے. ایک چیز یہ تو وہ پتہ ہے جس کا کام جائز ہے, اور جس کا کام ناجائز ہوتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ موٹیویٹڈ ہوتا ہے پیسے لگانے کو. وہ کہتا ہے کہ میرا ناجائز کام ہے, وہ ہو جائے, چاہے مجھے 1 لاکھ لگانا پڑے, 2 لگانا پڑے, میں لگانے کو تیار ہوں. تو ایک تو یہ پہلو ہے کہ سوسائٹی ہماری خود سے بھی, جو سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ ہے نا اداروں کا وہی ہوگا. ادارے یوں سمجھیں کہ سوسائٹی کا ایک آئینہ ہے, ایک شیشہ ہے. جیسی تربیت ہماری ہوگی, جیسی آپ کی آج ہوگی, کل آپ بھی لوگوں نے اداروں میں بیٹھنا چاہیے, تو آپ نے اسی طرح سے اداروں کو چلانا ہے نا. تو بیسیکلی تربیت ہماری گھر سے, ہمارے اسکول سے, ہماری سوسائٹی سے ہماری اچھی ہو جائے تو ادارے خود لوگوں بہتر ہوتے جائیں گے. اور دوسری چیز جو ہے وہ پھر اداروں میں چیک اینڈ بیلنس ہے, وہ بلا شبہ اس میں ہر وقت بہتری کی گنجائش ہے. اس میں کمیاں, کوتاہیاں ضرور ہوتی ہیں اور گریجولی امپروومنٹ آتی ہے. کوئی بھی جو سوسائٹی ہے اوور نائٹ جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو جاتی, ترقی یافتہ نہیں ہو جاتی, یا بہتر نہیں ہو جاتی. آپ ویسٹ کی سوسائٹی کو اٹھا کے دیکھیں, اگر آپ یورپ کو دیکھیں تو 16ویں صدی ان کا تاریخ دور تھا. 16ویں صدی کو اگر آپ اس کے بعد وہاں تک کا دور دیکھیں تو ان کا ایک تاریخ دور ہے. لیکن اس کے بعد سے انہوں نے ترقی شروع کی ہے, گریجولی چیزیں امپروو ہوئی ہیں. انہوں نے 16ویں صدی تک وہ کام کیے ہیں, وہ گناہ, وہ برائیاں, وہ جرائم کیے جو ہم نے آج بھی نہیں کیے. وہ بھی انسانوں کو چڑھاوے چڑھاتے تھے, ذبح کرتے تھے. لیکن اس کے بعد جب وہ انہوں نے اپنا ٹریک ٹھیک کیا, راستہ سیدھا کر لیا, تو انہیں بھی 300-400 سال لگے ہیں یہاں تک پہنچنے میں. تو ہم تو ابھی 70 سال ہماری اسٹیٹ گروپ ہے نا بڑے پاکستان کو, تو ابھی ہمارے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں فائنینشیل ایشوز ہیں ہمارے اندر, دیگر معاملات بھی بہت زیادہ ہیں, تفریق بہت ہے, تقسیم بہت ہے. تو ٹائم لگے گا سوسائٹی کو, اداروں کو بہتر ہونے میں, لیکن اس میں سب سے میجر انپوٹ کو سوسائٹی کا اپنا ہوگا. کے ساتھ آپ کو مزہ آ رہا ہے سیشن کا, سمجھ آ رہی ہے؟ چلے ماشاءاللہ. باللہ یہ کوشچن لیتے ہیں ہم نا صحیح. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مائی نیم از ہمنا سعید. میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں پولیس سے ڈرنا چاہیے یا نہیں ڈرنا چاہیے؟ میں پوچھوں گا کہ آپ بتائیں کہ پولیس کا ڈر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟
हाँ जी, होना चाहिए डर। वही कहते होना चाहिए। हाँ जी, क्यों होना चाहिए ये भी बताएंगे? जी बताएंगे पुलिस का डर क्यों होना चाहिए लोगों में? जी बॉयज बताएं। इसका डर होगा तो लोग जुर्म से बाज रहेंगे। गुड। फियर जो है, फियर ऑफ पनिशमेंट जो है, ये जरूरी है सोसाइटी में। सजा का खौफ होना सोसाइटी में ये भी जरूरी है। जब तक हमें ये डर नहीं होगा कि हम कोई गलत काम करेंगे और पुलिस हमें पकड़ लेगी और हमें सजा मिलेगी, तो फिर हम जराइम से कैसे रुकेंगे, बाहर आएंगे? तो ये बहुत जरूरी है डर का होना भी। लेकिन पुलिस से डरना, जो शरीफ आदमी है, जो जिसने कोई जुर्म नहीं किया, उसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पुलिस आपकी खिदमत के लिए है, आपकी सर्विस के लिए है, आपकी फैसिलिटी के लिए। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि आप कहते हैं कि पुलिस से डरना चाहिए कि नहीं। फर्ज करें कि आप रात को किसी जंगल में, सहरा में, पहाड़ में सफर कर रहे हैं गाड़ी में, फैमिली है, 2-3 लोग हैं, बच्चे हैं, और आपको खौफ महसूस हो रहा है और दूर से कहीं आपको पुलिस की गाड़ी की लाइट नजर आए, तो क्या उस वक्त आप डरेंगे? नहीं डरेंगे। क्यों? सेंस ऑफ सेफ्टी और सिक्योरिटी होगा, आपको ये एहसास होगा कि पुलिस मौजूद है, आप महफूज। सर वैसे भी डर के आगे ये है कि पुलिस से डरना चाहिए। पुलिस बेसिकली तो आपको सर्व करने के लिए, आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, इसमें डरने वाली कोई चीज़ नहीं है, कोई बात नहीं है। पुलिस को देख के आप पुलिस से मिलें, अपने मसाइल, जब भी आपको कोई मसला है आप उनके पास जाएं, ओपनली डिस्कस करें, बताएं उन्हें। बाकी जो क्रिमिनल हैं उन्हें ज़रूर डरना चाहिए और हम भी उन्हें डरने के लिए हर वक्त तैयार हैं। हमारा ये भी काम है कि उन्हें डराना है, उन्हें डराएंगे तो वो रुकेंगे। और अभी हम क्वेश्चन लेते हैं बॉयज सेक्शन से। हैदर इरशाद। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम मोहम्मद हैदर इरशाद है। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका आइडल कौन है? एक ही है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनसे अलावा या उनसे हटके तो किसी और को आइडियल सोच नहीं। ये हमारे सिंध से आया हुआ एक स्टूडेंट का। जी ये हमारा सिंध से आया हुआ स्टूडेंट है, जिसका एक्सेंट भी प्योर सिंधी है। तो सर वो आपसे क्वेश्चन करना चाहता है। मैं मोहम्मद जलील। ये शायद से ये सवाल है कि लोग पुलिस पर भरोसा क्यों नहीं करते? माजिद आप किस जगह से हैं? सिंध में? सिंध किस डिस्ट्रिक्ट से? सक्कर से। अच्छा बैठ। अच्छा सवाल है कि इनका कि लोग पुलिस पे भरोसा क्यों नहीं करते? अच्छा माजिद, बात शुरू में मैंने की थी, वो आपको हर जगह वही चीज नजर आएगी। सोसाइटी में कोई ऐसा इदारा है जिस पे आप भरोसा करते हो? कोई एक भी इदारा, पुलिस को छोड़े किसी भी इदारे में नहीं है ना, कोई भी इदारा ऐसा जिस पे भरोसा किया जाता है। मैं आपको सादा सी मिसाल देता हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल में हमारे टीचर्स हैं, वो वहाँ पे बड़ी बड़ी तनख्वाहें और पैकेजेस ले रहे हैं, तो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं लेके जाते? क्यों नहीं भरोसा करते गवर्नमेंट स्कूल? ये मैंने मिसाल इसलिए नहीं दी कि मैं किसी और इदारे को कंपेयर करके तो मैं अपने इदारे के ऊपर से कोई इस तरह का वजन या ये जो सवाल है आपका ये उठाने जा रहा हूँ, मैं इसका जवाब तो देने जा रहा हूँ। लेकिन मैंने एक चीज़ आपके सामने रखी है कि ये एक अलमिया है हमारा, कि हमारा कोई भी इदारा इस लेवल का मेयार का नहीं है जिसपे पब्लिक आंखें बंद करके एतमाद या ट्रस्ट कर सके। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि हमारी सोसाइटी जो है वो खुद भी इन्हीं बैड प्रैक्टिसेस में है, चाहे वो टीचर है, वो डॉक्टर है, वो पुलिस वाला है, वो जज है, कोई भी है, ठीक है। और दूसरा, एक तो सोसाइटी खुद से इस तरह है, दूसरा अपने बच्चों की भी तरबियत भी उसी तरह कर रहे हैं। जब वो फिर बड़े होकर इदारों को ज्वाइन करते हैं तो उन्होंने उसी तरह से परफॉर्म करना होता है। अब आते हैं इस सवाल की तरफ कि पुलिस के ऊपर भरोसा क्यों नहीं करते? पुलिस के ऊपर देखिए, जब पुलिस के पास हमेशा दो तरह के लोग आते हैं। जब भी कोई मामला आता है तो उसमें दो पार्टी से इन्वॉल्व होती है, तो उनमें से हमेशा एक पार्टी हक पे होती है और एक पार्टी नाहक होती है, एक पार्टी गलती पे होती है। तो अब पुलिस वाला कोई भी कदम उठाएगा, अगर वो हक करेगा तब भी एक पार्टी ने नाराज हो जाना है, अगर वो नाहक करेगा तब भी एक पार्टी ने नाराज होकर जाना है।
हमारी ड्यूटी ऐसी है कि हमें इतनी ज़्यादा मुद्दे डीलिंग करनी पड़ती है कि हर मामले में हमसे एक पार्टी नाराज होकर जानी ही जानी होती है। ये नहीं हो सकता कि हम एक ही वक्त में दोनों को खुश कर सकें। वो उसी सूरत में है कि उनका मसला सुलह की सूरत में खत्म हो जाए, वो आपस में बायलैटरल सुलह कर लें, ठीक है। लेकिन अगर हम मेरिट करेंगे या हम कोई अपनी तरफ से फैसला इम्पोज करते हैं तफ्तीश में, तो वो उसमें एक पार्टी में जरूर नाराज होना होता है पुलिस से। तो वो फिर पुलिस के गिले शिकवे तो उन्होंने डेफिनेटली सोसाइटी में जाके करने हैं, वो मीडिया में भी करेंगे, वो पब्लिक में भी जाके करेंगे। तो पुलिस के खिलाफ जो ज्यादा गिले शिकवे हैं, लोगों की शिकायतें हैं, वो इसी को आते हैं कि आप जो कह रहे हैं कि 50% तो लोग पुलिस से नाराज रहेंगे ही रहेंगे। बुनियादी वजह ये है कि लोगों में, हम लोगों में इतना पेशेंस नहीं है, इतनी मॉरल वैल्यूज नहीं है कि अगर हम गलती पे हैं तो हम उसे एडमिट कर लें कि यार ये जो फैसला मेरिट पे हुआ है, बेशक मेरे खिलाफ हुआ है, लेकिन ये फैसला ठीक है, मुझे इसे मान लेना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि उसके अगेंस्ट मीडिया फाइल करना, उसके अगेंस्ट ढंढोरे पीटना, चाहे हमारे खिलाफ फैसला सही भी हो, लेकिन हम कभी भी गलती तस्लीम नहीं करते। हम दूसरे को गलत कहने के लिए लगे रहेंगे, उसमें पुलिस वाला है, जज है, टीचर है, कोई भी। तो ये भी वजह है पुलिस के खिलाफ भरोसा या शिकायत ना होने की। मेरा नाम हसन हुसैन अली है और मेरा सवाल ये है कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे लिए कौन सा प्रोफेशन बेहतर है? मैं अकेला जो स्टूडेंट है ना, वो बाख्तियार नहीं है हमारी सोसाइटी में। वो खुद से अपना प्रोफेशन चूज नहीं कर पाता, फोर्स किया जाता है उसको। जब बच्चा पैदा होता है तो फिर उसी वक्त पेरेंट्स सोच रहे होते हैं ये ऑफिसर बनेगा, ये डॉक्टर बनेगा, ये जज बनेगा, ये कुछ टीचर बनेगा, कुछ भी बनेगा। तो उन्होंने, पेरेंट्स ने अपना एक माइंड पहले से बनाया वो होता है कि ये बच्चा बड़ा होकर कोई ना कोई ऑफिसर बनेगा या कोई जज बनेगा या कोई डॉक्टर बनेगा। तो वो उसकी ग्रोइंग उसी तरह से कर रहे होते हैं, उसकी तालीम उसी डायरेक्शन में चला रहे होते हैं। उसमें एक फैक्टर तो वो हो गया आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली। दूसरा फैक्टर है आपका टीचर, आपका स्कूल। वो बच्चे को देख रहा होता है, उसके साथ उसकी एकेडमिक्स को चला रहे हैं, उसे भी अंदाजा हुआ होगा कि इस बच्चे में कौन से फील्ड में परफॉर्म करने की सलाहियत ज़्यादा है। कोई मैथ्स में अच्छा है, कोई बायोलॉजी में अच्छा है, कोई आर्ट्स में अच्छा है, ठीक। तो दूसरा फैक्टर वो आपकी जो है स्कूल है, आपका इंस्टीट्यूशन है, बच्चा खुद भी सेल्फ है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इन तीनों फैक्टर्स को मिल के डिसाइड करना चाहिए, डिस्कस करके कि बच्चे के लिए कौन सी डायरेक्शन ठीक है। बच्चे की अपनी जो लाइकिंग डिसलाइकिंग, उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए, उसे देखना चाहिए कि वो किस फील्ड में ज़्यादा कंफर्टेबल है, किस फील्ड में ज़्यादा अच्छा है, तो उसको उसी फील्ड में उसको आगे लेके जाया जाए। हमारे यहाँ बदकिस्मती से सिर्फ 2-3 फील्ड हैं जिन्हें प्रेफरेंस दी जाती है, और हर पेरेंट, गरीब अमीर, वो यही सोच रहा होता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मेरा बच्चा जज बने, मेरा बच्चा ऑफिसर बने। इसके अलावा किसी फील्ड को नहीं वो पसंद किया जा रहा होता। लेकिन फिर वो ये होता है कि जब बच्चा नाकामियाँ देखता है तो फिर वो हर फील्ड के लिए भी अटेम्प्ट करता है, और जहाँ एक्सीडेंटली वो चला जाए वहाँ जाके वो बैठ जाता है, काम करने लग जाता है। लेकिन चूंकि उसकी वो स्किल्स नहीं होती, उसका वो बैकग्राउंड नहीं होता, फिर वो उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। अगर उसकी लाइकिंग्स को, उसकी मेंटेलिटी, उसकी अप्रोच है, उसको सामने रखते हुए फील्ड सेलेक्ट किया जाए, तो फिर तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएगा और बड़ा यूजफुल किस्म का मेंबर होगा सोसाइटी का। तो इसमें आप अपने पेरेंट्स के साथ और अपने टीचर्स के साथ ये करें डिस्कस, और वही आप बेहतर कोच और गाइड करें। My question is, हमारे माशरे में इंसाफ क्यों नापैद है? जी माशाल्लाह, आपका भी बड़ा एक फैक्चुअल किस्म का सवाल है। ये माशरे में ये चीज़ बड़ी महसूस की जा रही है और बड़ी नुमाया है कि जस्टिस जो है वो नापैद है या डिलेड है या नहीं मिल रहा है। बिल्कुल ये मसला बड़ा टॉप है। उसमें फैक्टर्स फिर वही हैं जो भी मैंने बताया आप लोगों को, कि जिसने जस्टिस देना है उस बंदे की तरबियत, उस बंदे की तरबियत जिस सोसाइटी ने की है। आप देख लें, आप फर्ज करें आप लोग 2 भाई हैं, एक छोटी एज में, एक भाई को हम रखते हैं एक और सोसाइटी में, उसे आप भेज दें अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, और एक भाई पाकिस्तान में ग्रो करता है। जब वो प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे, उन्हें एक ही फील्ड दे दें आप, उसको भी जज बना दें, इसको भी जज बना दें, तो क्यों इन दोनों में इतना नुमाया फर्क होगा?
ब्लड तो एक ही है, पीछे ब्लड लाइन तो उनकी, उनका डीएनए, उनकी पेरेंटेज सब कुछ एक है। फर्क पड़ता है तो सोसाइटी की तरबियत से। तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी सोसाइटी में हमारा सिर्फ एक इदारा पुलिस नहीं, तकरीबन तमाम इदारे ही जुल्म का शिकार है। आप वापडा को देख लें, आप किसी भी और इदारे को उठाएं, पीटीसीएल को देखें, किसी कोई भी इदारा हो, तो उसमें मसाइल इसी तरह ही है जैसे आप बता रहे हैं। तो लेकिन चीज़ें ग्रेजुअली इम्प्रूव होंगी, उसमें सोसाइटी को आगे आना पड़ेगा, अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। लेकिन जब तक पेरेंट्स नहीं कहेंगे अपने बच्चों को कि आपने हलाल हराम में तमीज़ करनी है, आपने हक ना हक में तमीज़ करनी है, क्या जायज़ है क्या नाजायज़ है, जब तक बच्चे को ये चीज़ प्रैक्टिकली वो करके नहीं दिखाएंगे, बच्चे को समझ नहीं आएगी और ना ही वो बच्चा उसको अपने जहन में बिठाएगा, ना अपनी लाइफ में अपना उस पर अमल करेगा। तो पहली चीज़ तो यही है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, स्टाफ टीचर्स की जिम्मेदारी है, सोसाइटी की जिम्मेदारी है। बाकी जो इदारों में नकाइस हैं वो इदारों की अपनी खामियां भी हैं। तो इदारों के अंदर आप कानून को, रूल्स को, पॉलिसीज को उठा के पढ़ें तो बड़े ही अच्छे हैं, उनमें कोई कमियां कोताहियां खामियां नहीं है। लेकिन यही कवानीन, मिसाल के तौर पर इंडिया के और पाकिस्तान के कवानीन एक जैसे हैं, जो अंग्रेज ने हमें बना के दिए थे वही लेके चल रहे हैं इंडिया वाले भी। हम भी थोड़ी बहुत तब्दीली उन्हें अपने मुआशरे या अपने मजहब के जी अभी हम सेशन कन्वर्ट करते हुए गर्ल्स की तरफ मूव करेंगे। टेक अ क्वेश्चन फ्रॉम निदा। वालेकुम सलाम। My name is Nida Gilani and my question is that what is meant by policing? पुलिस का जो काम है वो पुलिसिंग है, जो भी काम है पुलिस का वो पुलिसिंग है। अब पुलिस का क्या काम है थोड़ा मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिक काम जो बुनियादी है वो ये है कि पब्लिक की, आवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करना, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी। उसमें पुलिस मुख्तलिफ अपने यूनिट्स के ज़रिए, मुख्तलिफ अपने विंग्स के ज़रिए ये काम कर रही है। तो उसमें हम इंटेलिजेंस ऑपरेशंस और इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए आवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। हमारी इस तरह से तक़सीम की गई है और उसमें हम आवाम को दो तरह की सर्विसेज दे रहे होते हैं। एक उनकी सिक्योरिटी है, तहफ़्फ़ुज़ है, और दूसरा उनकी सर्विसेज, उनके लिए कुछ सर्विसेज भी है। मिसाल के तौर पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, आपको सिक्योरिटी क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए, आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, तो इस तरह की सर्विसेज भी मिली। और अगर केस कोई आफत आ गई है मुल्क में, कोई इस तरह का इंसिडेंट हो गया जैसे ज़ल्ज़ला है, जैसे फ्लड है, तो उसमें पुलिस सर्विसेज दे रही होती है आपको, लोगों को वहाँ से निकालना है, शिफ्ट करना है उनको। तो ये पुलिस बेसिकली एक पुलिस फोर्स भी है एज वेल एज एक सर्विस भी है। तो ये दो काम नहीं कर पा रहे हैं पुलिस। उसमें भी पहला फैक्टर, क्योंकि गुर्बत ज़्यादा है तो क्राइम बहुत ज़्यादा है। इतना बड़ा सूबा है, इतना बड़ा यूनिट है, तो उसमें उसको कंट्रोल करना ज़्यादा मुश्किल है बनिस्बत कि अगर एक छोटा यूनिट हो। अगर हम इस तरह के स्टेप्स लें कि हम छोटे छोटे यूनिट्स बना के अपने, हमारी हुकूमत जो है वो इस तरह से सोचे कि अगर 16 करोड़ का एक सूबा है, उसको अगर हम मतलब 6-6 करोड़, 5-5 करोड़ के 4-5 सूबे बना लें, तो उसमें गवर्नमेंट की रेट जो है, वो पुलिस की रेट जो है वो बेहतर हो जाएगी। एक तो इसमें इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए गवर्नमेंट के लेवल पे। पहली चीज़ें जो मैंने आपसे डिस्कस की वो सोसाइटी के लेवल पे थी, पब्लिक खुद जो करने जाए वो अपने बच्चों को अवेयरनेस दे, स्कूलों में, घरों में हलाल हराम की कमी। दूसरी चीज़ जो है ये गवर्नमेंट के लेवल का काम है कि वो इस तरह से करे कि वो यूनिट्स को छोटा करे, अपने रेट को बेहतर करने के लिए इक़दाम करे, इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट ये बेहतर करे। तीसरी चीज़ है डिपार्टमेंट पुलिस, वो क्या करे, वो अपनी कैपेसिटी को बेहतर करे, स्किल्स को बढ़ाएं। हमारे यहाँ अब जैसे मैंने आपको बताया कि 2010 से पहले फोरेंसिक का कंसेप्ट नहीं था, ट्रेडिशनल पुलिसिंग हो रही थी। मतलब वही जो अंग्रेज के दौर की तफ्तीश थी, तरीक़ाकार तफ्तीश था, वही तरीक़ा तफ्तीश 2010 तक तकरीबन चल रहा था। लेकिन उसके बाद से अब पिछले अगर हम एक डेकेड को देखें 15 साल में, तो बड़ी रेवोल्यूशनरी किस्म की चीज़ें आई हैं इन्वेस्टिगेशन के मोड में भी। तो अब हम फोरेंसिक्स को इसमें ले आए हैं, हम टेक्निकल और साइंटिफिक जो है तरीक़ों से तफ्तीश कर रहे हैं, और उससे जो है ना क्राइम और जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है वो तो काफ़ी हद तक हम उसको टैकल कर पाएंगे। लेकिन अब चूँकि गुर्बत है और अब पिछले 2-3 सालों में तो बहुत ज़्यादा बढ़ी है गुर्बत,
महंगाई बहुत बढ़ गई है, गुर्बत बहुत बढ़ गई है, तो उसने मजबूर भी किया है लोगों को क्राइम में इंडल्ज होने पे, इन्वॉल्व होने पे। तो उस चीज़ ने फिर क्राइम को एक तरफ पुश किया है, गुर्बत की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, तालीम की वजह से, मसाइल की वजह से, सोशल इंजस्टिस वो भी एक वजह है कि माशरे में जब इंसाफ नहीं मिल रहा होता किसी को तो वो खुद से बंदूक तलवार पिस्तौल उठा लेता है, कहता है मैं खुद अपने इंसाफ ले लूँगा अपना। तो ये मसाइल हैं जिसकी वजह से क्राइम बढ़ रहे हैं। तो पुलिस अपने तौर पर कोशिश कर रही है जितने रिसोर्सेज गवर्नमेंट उन्हें देती है उसके अंदर रहते हुए कि वो अपने तफ्तीश के मेयार को बेहतर करे, क्राइम कंट्रोल को बेहतर करे। उसमें बहुत सारी इनोवेशन आई हैं। अब हम जब ये इंटर्नशिप प्रोग्राम कराते हैं तो हम उसमें बता रहे हैं लोगों को कि जैसे सेफ सिटी का प्रोजेक्ट है, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है कि आप देखें अरबों रुपए उस पर लगे हैं और लाहौर शहर का कोई कोना ऐसा नहीं है जिसको उन्होंने कवर नहीं किया कैमरे में। हर चीज़ कैमरे में, पूरा लाहौर शहर। कोई गाड़ी अगर ओवर स्पीड करती है तो कैमरा उसी वक्त उसको कैप्चर करता है, उसका चलान जनरेट करता है, उसके घर पे पहुंचा देते हैं चलान उसका। अगर वो चलान पे नहीं करेगा, उसका एक टाइम है उसके अंदर, तो गाड़ी पकड़ी जाएगी, पुलिस उस गाड़ी को पकड़ लेगी। अब ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें कोई क्रिमिनल है वो अगर वांटेड है पुलिस को, वो यहाँ से लाहौर चला गया है, कैमरे के सामने है, कैमरा उसी को बता देगा कि वहाँ पे आपका क्रिमिनल वहाँ पे मौजूद है, उसे पकड़, और वहाँ की पुलिस उसे पकड़ लेगी और यहाँ की पुलिस जाकर उसे ले आएगी। इसी तरह होटल्स में, बसों में सफर करते हैं, हमने टेक्नोलॉजी को उसमें शामिल किया, इंट्रोड्यूस करवाया कि अब जितने भी बस स्टैंड हैं वहाँ पे जब सवारियाँ ट्रैवल करने के लिए जाती हैं, बस में टिकट कराते हैं अपना लोग, तो वो अपना शनाख्ती कार्ड नंबर उसमें डालते हैं सिस्टम में अपने। वो शनाख्ती कार्ड नंबर पुलिस के डेटा से कंपेयर होता है और अगर उसमें वो शख्स पुलिस को कहीं भी मतलूब है, वांटेड है पूरे पंजाब में, तो वो उनको इंटीमेशन चला देगा, फौरन मैसेज चला देगा कि आपका फलां मुलजिम जो है वो इस वक्त फलां बस में सवार हो रहा है फलां जगह से, और वहाँ की पुलिस उसको पकड़ लेगी जहाँ से वो सवार हो रहा है। लाहौर का एक शख्स है वो लिया आया हुआ था, वहाँ पे पुलिस को वांटेड है, यहाँ से वो अड्डे पे गया, बस में बैठने लगा, उसने टिकट करवाई, जो ही उसका सीने से डाला गया सिस्टम ने बता दिया लाहौर की पुलिस को भी और लिया की पुलिस को कि ये शख्स जो इस वक्त 11 बजे वाली बस में बैठने जा रहा है, सीट नंबर फलां पे ये नाम है, ये लाहौर को फलां मुकदमे में वांटेड है लाहौर पुलिस को। तो लिया की पुलिस को यहाँ पकड़ लेगी और लाहौर वाले यहाँ से आगे उसे ले जाएंगे। इसी तरह होटल्स में है, कोई आगे होटल में चेकिंग करता है, बुकिंग करता है, उसका भी CNAC दर्ज किया जाता है वहाँ पे। तो मतलब पुलिस अपने तौर पे एफर्ट्स कर रही है कि हम क्राइम को कंट्रोल करें, मुलजमान को पकड़ें, और जितनी गवर्नमेंट रिसोर्सेज दे रही है उनको बड़ा प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जाए। होपफुली विद द टाइम चीज़ें इंप्रूव होगी। अभी आप देख लें कि पंजाब को अगर आप बाकी सूबों से कंपेयर कर लें तो आपको पंजाब की पुलिस कितनी बेहतर नजर आ रही है। देखिए क्राइम की इसी तरह आपको पंजाब में जो है बाकी सूबों की निस्बत जो है काफ़ी कंट्रोल में नजर आता है। तो उसकी रीज़न यही है, कोशिश में है गवर्नमेंट भी, हमारे ऑफिसर्स भी, हमारा इदारा भी, तो थोड़ा टाइम लगेगा, इंशाल्लाह बेहतरी आती है। सर मेरा नाम अनफाल फातिमा है। मेरा सवाल ये है कि सर लड़कियों के लिए आपकी प्रोफेशन में क्या मौके हैं? अच्छा जी, बेसिकली आप अपनी सोसाइटी को अगर देखें तो यहाँ पे जो ख़वातीन की तादाद है वो मर्दों से ज़्यादा है। एक जो सर्वे है रैंडम सा उसके मुताबिक 52 या 53% ख़वातीन हैं और 47-8% जो है वो मर्द हैं सोसाइटी। तो अगर आप इनको किसी भी इदारे में शामिल नहीं करते ख़वातीन को, या उनके ऊपर कोई पाबंदी लगा दें कि वो इस इदारे में नहीं जा सकते, तो बेसिकली तो आप 52% ऑफ योर कम्युनिटी जो है उनको तो आपने वैसे ही अपने सिस्टम में से निकाल दिया, या वो अपना रोल, वो अपना इनपुट नहीं दे सकते, अपना रोल प्ले नहीं कर सकते सोसाइटी में, सोसाइटी की बेहतरी के लिए या उस इदारे के लिए। तो पहली चीज़ तो ये कि इतनी ज़्यादा हमारे यहाँ स्ट्रेंथ है लेडीज़ की, और अल्लाह पाक ने तो दिमाग सबकी बराबरी बनाई, चाहे वो मर्द है या औरत है, एक ही जैसे है। तो अगर आप 52% ऑफ योर कम्युनिटीज माइंड को आप एक साइड पे रख देते हैं, उन्हें बिल्कुल इस्तेमाल में नहीं लाते, तो आपने अपने माशरे का एक बहुत बड़ा नुकसान किया। दूसरी चीज़ ये है कि जब पुलिस है या कोई भी इदारा है उसकी जब इंटरेक्ट करना, स्पेशली पब्लिक डीलिंग बहुत ज़्यादा होती है, जिन इदारों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जिनमें पुलिस है टॉप पे, पुलिस की पब्लिक डीलिंग बहुत ज़्यादा है, तो हमें अपनी ड्यूटी के दौरान ख़वातीन के साथ भी वास्ता पड़ता है। ख़वातीन बाज़ तक मुतासरा होती हैं, बाज़ का उनसे कोई जुर्म सरजद वो होता है, तो उनकी इन्वेस्टिगेशंस करनी होती हैं, गिरफ्तारियाँ करनी होती हैं, तलाशियाँ लेनी है,
रोड पे तलाशी लेनी है, घर में तलाशी लेनी है। तो जितने भी पुलिस की इस तरह के ऑपरेशंस हैं उनके दौरान में खवातीन के साथ वास्ता पड़ता है। तो कभी भी कोई मर्द या कोई औरत ये नहीं चाहेगी कि उसके घर की या उसकी बहन की या उसकी माता की जो सर्च है वो कोई मर्द करे। अगर जरूरी है तो खवातीन के जरिए होनी चाहिए ना, खवातीन के जरिए। तो फिर खवातीन का पुलिस में होना इसलिए भी जरूरी है कि पुलिस में अगर खवातीन होंगी तभी वो इन लोगों को चेक कर सकेंगी ना खवातीन को। अब मर्द तो नहीं उन्हें चेक कर सकते, तो खवातीन नहीं कर रहे। इसी तरह खवातीन के जो मसाइल होते हैं तो वो भी जब थाने में या कहीं किसी ऑफिसर के पास जाएगी तो वो हो सकता है मर्द को अपने मसाइल उस तरह से बता भी ना सके खुल के। तो उसके लिए भी हमें फीमेल ऑफिसर्स का हमारे पास होना बहुत जरूरी है कि जब वो कोई औरत अपना मसला लेके आए, कोई लड़की, तो उसको आगे से जो डील है वो भी खवातीन ऑफिसर ही करे, ताकि वो कोई पर्दे वाला उसमें उसका ना रहे, वो खुल के उसके साथ बात करे, अपना मसला उसे तफसील से बता सके सर। तो ये फिर उसकी झिझक भी नहीं रहेगी कि जब वो थाने पे जाएगी, ऑफिस में जाएगी, तो उसे पता है वहाँ पे लेडीज के साथ ही मैंने बात करनी है, नहीं बताना मसला। तो ये एक दूसरी रीजन है कि खवातीन को पुलिस में होना क्यों जरूरी है उनके लिए। और पुलिस डिपार्टमेंट भी खवातीन को बड़ा अप्रिशिएट करता है, इनकरेज करता है। उन्हें इस तरह की जॉब से बचाया जाता है, दूर रखा जाता है जो बड़ी हेक्टिक किस्म की हो, बड़ी मुशक्कत वाली हो। उन्हें मेजॉरिटी जो है उन्हें डेस्क जॉब दी जाती है ऑफिस में, थाने में, और लिमिटेड आवर्स की जॉब होती है। ये नहीं कि 24 घंटे वो ड्यूटी पे रहेगी और हर वक्त बदली में रहेगी, इस तरह नहीं है। उनकी आवर्स भी होते हैं, उनकी रिप्लेसमेंट होती है, और इसी तरह उनकी डेस्क जॉब है, उनको ऑफिस में बिठाया जाता है, उनको ज़्यादा इस तरह से धक्के नहीं खाने पड़ते जिस तरह यूजली आप देखते हैं चौकों में पुलिस वाले आपको नजर आ रहे होते हैं, बेचारे टफ ड्यूटी कर रहे हैं गर्मी सर्दी में। खवातीन से ऐसी ड्यूटी बहुत कम होती है, नहीं की जाती। और बाकी खवातीन जो है वो पुलिस में बहुत ज़्यादा काम कर भी नहीं है, आप देख सकते हैं, आपको सोशल मीडिया पे और वैसे भी आपको नजर आ रही होगी फिजिकली भी। हमारे डिस्ट्रिक्ट लिया में पूरे डिवीजन के 3 अजला के जिसमें सबसे ज़्यादा खवातीन डिस्ट्रिक्ट लिया में। मेरा अंदाज़ा है कि बाकी तीनों अजला की अगर आप फीमेल जो है पुलिस में उनको मिला लें तो उसके एग्रीगेट के बराबर आप उसमें एक डिस्ट्रिक्ट, और ये सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पे लड़कियों में पुलिस में ज्वाइन करने का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है पुलिस ज्वाइन करने। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मेरा नाम तुगल बाग है। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान कैसे तरक्की कर सकता है? मुल्क की तरक्की के बारे में हर कोई सोचता है, हमें भी सोचना चाहिए। सोसाइटी की तरक्की के लिए जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो वहाँ का जस्टिस सिस्टम है। जब तक हमारा निज़ाम इंसाफ ठीक नहीं होगा हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। दुनिया में कई ममालिक ऐसे हैं वो कई दफ़ा तबाह हुए। आप जापान की मिसाल लें, ज़लज़लों ने कितनी दफ़ा उसे तबाह किया। उसके बाद वहाँ पे जंगें हुई, जब दूसरी वर्ल्ड वॉर में उसके ऊपर एटॉमिक बम गिराए गए तो भी वो तबाह हो गया। लेकिन उसके बावजूद आज देखें वो अगले 40-50 साल में दोबारा दुनिया की एक बड़ी इकोनॉमी और एक बड़ी ताकत बन जाता है। तो वहाँ का सिस्टम वो इतना फेयर और इतना अच्छा है, और उसमें बेसिक रोल जो है वो हमारे जस्टिस सिस्टम है। जस्टिस सिस्टम ठीक होगा तो बाकी जो इदारे हैं, बाकी जो फैसिलिटीज सर्विसेज हैं वो भी बेहतर हो जाएगी। हर किसी को सेहत की सहूलत एक जैसी मिलेगी, फिर हर किसी को तालीम के मौके एक जैसे मिलेंगे, फिर हर किसी को जॉब अपॉर्चुनिटीज एक जैसी मिलेगी, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एक जैसी मिलेगी। तो ये जब तक निज़ाम इंसाफ ठीक नहीं हो सकता पाकिस्तान बिल्कुल नहीं जा सकता। आंसर अभी लास्ट क्वेश्चन है हमारा हर सेक्शन से कुरतुलैन। वालेकुम सलाम। My name is Kuratulain and my question is, what skills and qualities you feel in yourself after joining this department? जी, मेरे ख्याल में आपका सवाल ये है कि पुलिस डिपार्टमेंट में आने के बाद मेरे अंदर कौन सी स्किल्स या क्वालिटीज जो हैं वो डेवलप हुई है या पैदा हुई है। तो जी, स्टूडेंट लाइफ से मैं सीधा पुलिस में आया। मेरी इसके दरमियान में कोई और प्रोफेशनलिज्म या कोई और कैरियर नहीं है मेरा। तो पुलिस का डिपार्टमेंट जो कि एक पुलिस फोर्स है, एक डिसिप्लिन इदारा है। तो स्टूडेंट जब मैं था, ये जो इंसान स्टूडेंट होता है तो शायद इतना वेल डिसिप्लिन नहीं होता।
उससे पुलिस में आना, मतलब एक दिन आप स्कूल कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, और अगले दिन आप पुलिस में ज्वाइन कर लेते हैं, या तो अगले वीक में आप पुलिस में ज्वाइन कर लेते हैं, तो जो आपकी आदतें होती हैं कुछ वो आपको छोड़नी पड़ती हैं और कुछ नई चीज़ें आपको अडॉप्ट करनी पड़ती हैं। तो इसमें पुलिस में आने के बाद पंक्चुअलिटी, वक्त की अहमियत, कदर कीमत ये समझ आई, और रेगुलर हुआ ज़्यादा। पहले स्टूडेंट था तो इतना रेगुलर नहीं था, मैं तो इतना जो कह लेंगे पढ़ने वाला या रटे लगाने वाला स्टूडेंट नहीं था कि हर वक्त मैं किताबों में इन्वॉल्व रहता था, इंगेज रहता था। तो लेकिन उस वक्त की भी कीमत, कदर कीमत नहीं, ये एहसास नहीं था। लेकिन जब पुलिस में आया तो फिर ये एहसास हुआ कि अगर आप 1-2 मिनट भी कहीं लेट पहुँचते हैं अपनी ड्यूटी पे, तो कितनी बड़ी कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी उसकी। मिसाल देता हूँ आपको कि अगर आपकी कहीं पे ड्यूटी है, सिक्योरिटी चेकिंग के हवाले से कोई जलसा जुलूस हो रहा है, कोई प्रोग्राम हो रहा है, पुलिस वाला वहाँ अपनी ड्यूटी पे 5 मिनट भी लेट पहुँचे, तो उस 5 मिनट के अंदर वहाँ पे अगर उसने वहाँ पे लोगों को चेक करना था, और उस 5 मिनट के अंदर वहाँ से अगर कोई 70-80 लोग गुजर गए हैं, उसमें दाखिल हो गए हैं प्रोग्राम के अंदर, जुलूस के अंदर या प्रोग्राम के अंदर, तो वो अनचेक गए हैं फंस गए, तो इतना बड़ा नुकसान हो सकता है। सो पुलिस में आने के बाद ये पता चला कि अपना जो काम है, जो ड्यूटी है, उसमें 5 मिनट 10 मिनट पहले पहुंचना है और 5-10 मिनट बाद छोड़ना है उसको। तो एक चीज़ मैंने ये लर्न की है। दूसरा इसमें और एक चीज़ मुझे मिली कि मेरा विजन बहुत बड़ा है। पुलिस ऐसा इदारा है कि आपकी इंटरेक्शन हर किस्म के, हर फील्ड के बंदे से होती है। मेरा इंटरेक्शन और वहाँ से भी अलग-दीन जो है उनसे भी वास्ता पड़ा, CDD में होते हुए बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ मजहबी तंजीमों, मजहबी उलमा के साथ वास्ता पड़ा, उनके साथ बैठा, समझा उनको। टीचर्स के साथ भी पढ़ता है, क्रिमिनल्स के साथ भी पढ़ता है, जिम्मेदारों के साथ भी पढ़ता है, सियासतदानों के साथ भी पढ़ता है। तो इंसान का विजन बहुत बड़ा होता है, उसे बहुत सारा नॉलेज मिलता है पुलिस में आने के बाद। और वो एट द एंड जब वो रिटायरमेंट की एक तक आता है तो एक बड़ा ही मंझा हुआ किस्म का और बड़ा एक माशाल्लाह, बड़ा ही मुफस्सिल और बड़े डिटेल जवाब दिया आपको सर ने। और अभी हम जो क्वेश्चन लेंगे वो बॉयज सेक्शन से लेंगे, और बॉयज में है किसी का सवाल? जी Sir, why you have choose this field? ये है कि मैंने पुलिस डिपार्टमेंट क्यों चूज किया या क्यों ज्वाइन किया। स्टूडेंट था, मैंने आपको बताया कि मैं कोई इतना ज़्यादा रट्टे लगाने वाला या ज़्यादा किताबों में गुम रहने वाला स्टूडेंट नहीं था। ज़हीन था लेकिन ज़्यादा पढ़ाकू स्टूडेंट नहीं था। तो मुझे तो ये प्रोफेशन इतने ज़्यादा नहीं पसंद अट्रैक्ट कर रहे थे जो मेडिकल है, इंजीनियरिंग है। मेरा मोड कुछ और था, फैमिली की अपनी डायरेक्शन होती है। तो मेरी जो डायरेक्शन थी, जो लाइकिंग थी, वो एक यूनिफॉर्म ऑफिसर की थी। तो मैंने उसके लिए जब मैंने अपनी FSC की तो फिर मैंने आर्मी का, सबसे पहले आर्मी का एग्ज़ाम किया। मैंने कमीशन ऑफिसर का एग्ज़ाम पास किया, सेकेंड लेफ्टिनेंट 2002-03 में मेरी सिलेक्शन हो गई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ट्रेनिंग पे जाने से पहले एक मेडिकल में हेपेटाइटिस C कैरियर हो गया वायरस का, मैं नहीं जा सकता आर्मी को ज्वाइन नहीं कर सकता। उसके बाद फिर मेरी नेक्स्ट प्रेफरेंस जो थी वो पुलिस थी, पुलिस में आ गया। उसके एग्ज़ाम दिए, पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू मैंने पुलिस को ज्वाइन कर लिया। तो मैंने जो है ना आपको एक चीज़ ही शेयर करनी थी कि जब मैं आर्मी से मैं ड्रॉप हुआ उस वक्त मेरी एज 18 थी, 18 साल थी। और फिर उस साथ में हेपेटाइटिस भी मुझे डिस्क्लोज हो गया, उसका ट्रीटमेंट भी शुरू हो गया। तो स्टडीज़ भी मेरी रुक गई 1-1.5 साल के लिए कि मैं हेपेटाइटिस के ट्रीटमेंट में चला गया। लेकिन उसके बावजूद मैंने जो है ना वो अपनी कमिटमेंट नहीं छोड़ी कि मैंने यूनिफॉर्म ज्वाइन करना है, यूनिफॉर्म डिपार्टमेंट। और मैंने उसके बाद 3 दफ़ा दोबारा कमीशन का एग्ज़ाम पास किया। मेरे एटॉमिक एनर्जी में सिलेक्शन हुई, मेरी पुलिस में हुई, और पुलिस के बाद मेरी फिर फाइनेंस में हुई। लेकिन मैंने प्रेफरेंस पुलिस को ही दी, वो इस वजह से कि पुलिस की पब्लिक डीलिंग, पुलिस का पब्लिक इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा है। और अगर कोई शख्स पब्लिक को या सोसाइटी को सर्व करना चाहता है तो पुलिस में रहते हुए सबसे ज़्यादा सर्व कर सकता है। इसी
سوال کیے اور سر نے بڑے تحمل کے ساتھ ان سوالوں کے جوابات دیے، اور مجھے امید ہے کہ ہمارا جو سیشن ہے بڑا ہی فروٹفل رہا ہے اور آپ کے لیے یہ فیوچر اورینٹڈ ہوگا اور آپ آنے والی زندگی میں اس کو ان چیزوں کو اڈاپٹ کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی لاسٹ پہ سر سے گزارش ہے کہ سر اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ زبردست سیشن رہا آپ لوگوں کے ساتھ میرا، بڑے ہی فیکچوئل قسم کے اور بڑے ویلڈ قسم کے کوشچن تھے آپ لوگوں کے، یہ آپ کے لیول سے میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، جس طرح کی آپ کی بھی ایج ہے اور جس طرح کی آپ کی بھی کلاس ہے، ایجوکیشن ہے، یہ تو ماشاء اللہ یونیورسٹیز کے بچے جو ہے نا وہ اس طرح کے کوشچنس کرتے رہتے ہیں ہم سے، تو بڑی آپ لوگوں کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بڑی سرپرائزنگ تھی میرے لیے۔ اب میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے کہا ہے کہ مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو لوگوں کو حق کی طرف بلائے، جو لوگوں کو حق کی طرف بلائے اور لوگوں کو برائی سے منع کرے، روکے، نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے، منع کرے۔ تو ویسے تو اس حکم کی روشنی میں اگر دیکھیں تو ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ اس جماعت کا حصہ ہو، ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ اس جماعت کا حصہ ہو، وہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے والا ہو اور برائی سے روکنے والا ہو۔ لیکن پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے نا اس کی تو پیورلی ڈیوٹی ہی یہی ہے، وہ اسی آیت کی، اسی اللہ کے حکم کی روشنی میں ہی کام کرتا ہے۔ اس کا بنیادی کام لوگوں کو غلط کام سے روکنا ہے اور صحیح کام کی طرف لے کے جانا ہے، اس میں لگنا ہے۔ تو ایک تو مطلب اگر آپ اس قرآن پاک کی اس آیت کو سامنے رکھیں تو یہ ایک واضح حکم ہے کہ آپ لوگ پولیس کو جوائن کریں۔ میں تو یہی کہوں گا کہ آپ لوگ سارے اچھے سے اپنی تعلیم مکمل کر لیں، اپنی گرومنگ آپ کی ہو جائے جب، اور آپ پولیس کو جوائن کریں اور اس قوم کو، اس ملک کو سرو کریں، اپنی سوسائٹی کو سرو کریں۔ دوسری چیز میں بات کرنا چاہوں گا آپ کی اپنی کیریئر کے حوالے سے، آپ کی اپنی ایجوکیشن کے اور آپ کی جو لائف اس کے حوالے سے زندگی۔ دیکھیں انسان کی زندگی میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے، جو سب سے قیمتی چیز ہے؟ کوئی بچہ بتائے؟ سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے انسان جس کے لیے سب سے زیادہ کوشش کر رہا ہے، اسٹرگل کر رہا ہے ہر وقت، کیا چیز ہے وہ؟ جی آپ پلیز، کیا حاصل کرنے کے لیے؟ جی بڑا آدمی کیسے بنتا ہے؟ مطلب کامیابی سے، ہر کامیابی سے انسان بڑا آدمی بن جاتا ہے۔ لیکن بڑے آدمی کی پہچان جو ہوتی ہے نا وہ اس کا کردار ہے۔ انسان جتنی کوشش کر رہا ہے، چاہے کوئی تعلیم حاصل کر رہا ہے، کوئی دولت حاصل کر رہا ہے، کوئی کچھ بھی کر رہا ہے نا، وہ ساری اسٹرگل ہے معاشرے میں عزت حاصل کرنے کے لیے، ایک بڑا مقام حاصل کرنے کے لیے، اور وہ عزت اور وہ مقام جو ہے اس کی پہچان اس کا کردار ہے۔ جس انسان کا کردار جتنا بلند ہوگا، آج جب ہم بات کرتے ہیں کسی بھی پرانی ہستی یا شخصیت کی جو گزر چکے ہیں، تو ہم ان کی دولت کی بات نہیں کرتے، ہم ان کے قد کی بات نہیں کرتے، ہم ان کے وزن کی، ان کی خوراک کی، ہم کی کوئی اور چیز ڈسکس نہیں کرتے، ہم ان کی ڈسکس کرتے ہیں تو صرف ان کا کردار ڈسکس کرتے ہیں۔ انسان کا نام جو ہوتا ہے نا وہ اس کی پہچان نہیں ہوتا۔ میرے نام کی پتہ نہیں کتنے لوگ دنیا میں آئے ہوئے چلے جائیں گے اور آپ کے نام کے بھی اسی طرح، لیکن اگر فرض کریں ہم کسی بھی ایک شخص کو اٹھا کے دیکھیں کہ فرض کریں ہم محمد نام کے لوگوں کو دیکھیں تو محمد نام کے تو ہزاروں لاکھوں لوگ دنیا میں آئے اور چلے گئے، لیکن جب ہم محمد نام بولتے ہیں تو جو شخصیت ذہن میں آتی ہے وہ شخصیت دراصل وہ کردار ہے جو ہمارے ذہن میں آتا ہے، ورنہ تو محمد یہاں بھی بہت سارے بیٹھے ہوں گے، ہماری سوسائٹی میں بہت سارے ہیں۔ اگر ہم جناح کی بات کرتے ہیں، محمد علی جناح کی، تو بہت سارے محمد علی آئے دنیا میں بھی موجود ہیں، لیکن وہ ایک شخصیت ہمارے ذہن میں کیوں رہ جاتی ہے؟ اس کے کردار کی وجہ سے۔
कोई मोहम्मद अली जिन्ना की दौलत नहीं डिस्कस करता, कोई उसकी फैमिली डिस्कस नहीं करता, बहन भाई बच्चे, तो किरदार सबसे अहम चीज है। तो आप लोग अगर मुआशरे में आज फ्यूचर में मरने के बाद, दुनिया से जाने के बाद जिंदा रहना चाहते हैं तो अपना किरदार बनाइए। हर चीज आपको दोबारा मिल सकती है, आपसे चली गई है, छिप गई है, दौलत है, कुछ भी है, वो वापस मिल जाएगी, किरदार वापस नहीं मिलता। किरदार सबसे दुआ है अशार की सूरत में मैं ये करना चाहूँगा। अल्लाह तुमको साहिबे सैफो सिना करे, अल्लाह तुमको साहिबे सैफो सिना करे, देकर शऊर अजीज इरादे जमा करे, जिस्मों में रूह खालिदो तारिक रवा करे, लहू जो जम चुका है रगों में दमा करे, तुमको रहे रसूल पे चलना नसीब हो, तुमको रहे रसूल पे चलना नसीब हो, कब से गिरे पड़े हो संभलना नसीब हो। और आप तमाम बच्चे जो यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने आज की इस महफिल को चार चांद लगाए अपने सवालात से, और उम्मीद है कि आपकी इससे बहुत तशक्की हुई होगी। इसी तरह इंशाल्लाह ये हमारे सेशन चलते रहेंगे और होप के इसमें इम्प्रूवमेंट भी आती रहेगी और आपके जो जहन हैं वो भी वसी होते रहेंगे, जो हमारा एक बुनियादी मकसद है। तो अल्लाह ताला आप सबको यहाँ पे कामयाब करें आने वाली ज़िंदगी में, और हम अपने मौजूद मेहमान के भी शुक्रगुजार हैं कि आप हमारी दरख्वास्त पर यहाँ तशरीफ़ लाए। हम आपकी बिहाफ पे आपके डिपार्टमेंट महकमा पंजाब पुलिस का भी इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने आपको हमारी दरख्वास्त पे यहाँ पे भेजा और आप उसके नुमाइंदे के तौर पे यहाँ पे हमें और हमारे बच्चों को यहाँ पे आपने अपने भरपूर जो जवाबात हैं उनसे हमें आपने नवाजा।